Good evening, sir. Achieve. Could you solve this question? This question that I gave last time? Sir, for this question, I'm getting the answer as 10 joules. Oh. You Sir, my solved. approach is that Uh, firstly, I'm finding the initial velocity and hmm. final velocity I know because 10 by 5, so 2 is the final velocity. And from the equation of motion, v is equal to u plus at. I'm finding the u. Then How I'm do putting it. how did you find the velocity? Velocity is p by m because from the dimensional formula, p by Correct. m. Correct. So it's 2 and time I know 5 and acceleration is force by mass. Sorry, yes, force by mass. So it's 2 by 5. So from there I find u as 0. Then I put it in v square minus u square equal to 2s. And find s, then f dot No. s. This is the mistake you did. Initial velocity is not zero. No? Initial velocity is the velocity that you have found. Per second. 2 meter per second. Correct, Shahida. Initial velocity was the velocity that Okay, you okay, have found. Because okay, initially at time t equal to 0 only 2 Newton was acting. No? yeah. That's why. Then if you use that s is equal to ut plus half at square, there by using that you can find out the displacement. And once you have found out the displacement, force into displacement will be your this one, change in kinetic energy, because work done is equal to change in kinetic. That is one way. Yes, yes. Ashika, Yes, तुमने I think solve. now I'm getting the answer. Okay, you are getting the answer now. Ashika, you solved it. नहीं सर मेरा करेक्ट आंसर नहीं है नहीं है तो देखो मैं एक बार दिखाता हूँ. अच्छा, actually this as I see this question ना, you can solve this question using two methods, you know. Both the methods I'll tell you. But before telling the second method, I need to tell you about the impulse. What is impulse? But let me tell you about the first. Let me tell you how to solve it using method one, easier way. Both are actually easy only. The second one is bit more easier and shorter. See, the first method is body of mass 5 kg. अशका देखना ध्यान से, इन लोगों ने तो सॉल्व कर लिया है. Body of mass 5 kg is moving with a momentum of 10 kg meter per second. अब मोमेंटम है 10 kg मीटर पर सेकंड. मोमेंटम क्या होता है पहले मोमेंटम भी समझ लो. मोमेंटम जो होता है p इज इक्वल टू एम वी होता है. इसको हम कहते हैं मोमेंटम. तो शायद पता ही होगा तुम्हें. मास इनटू वेलोसिटी. इनिशियल मोमेंटम इन लोगों ने 10 दिया हुआ है, मास हमें 5 kg दिया हुआ है. तो इसका मतलब इनिशियली जब स्टार्टिंग में इसकी जो वेलोसिटी थी वो हमें पता है. वेलोसिटी क्या है, u. इसको मैं u बोल देता हूँ. u इज इक्वल टू दिस मोमेंटम mv divided by mass is p by m. ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास 10 divided by 5 is equal to 2 meter per second. ये क्या होता है, फोर्स ऑफ 2 न्यूटन एक्ट्स ऑन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन फॉर 5 सेकेंड. इस पर फोर्स लग रही है लगातार, कंटिन्यूसली 2 न्यूटन. कब तक, 5 सेकेंड तक. मतलब यहां से लेके यहां तक इधर तक लग रही है. इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी. अब देखो 2 न्यूटन कंटिन्यूसली लग रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फोर्स बाय मास. So this will be 2 Newton divided by 5. So this will be your acceleration. अब देखो, इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है. तुम्हें पता है कि W टोटल, जो टोटल वर्क डन होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम है ना इसका. तो हमें बस वर्क डन निकालना है. वर्क डन निकालने के लिए फोर्स तो हमें ऑलरेडी पता है, ये वाली 2 न्यूटन कंटिन्यूसली एक्ट कर रही है पूरे 5 सेकेंड तक. तो फोर्स तो हमें पता ही है, दिस इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट.
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देगा हमको। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फोर्स 2 न्यूटन है इंटू डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं उस इक्वेशन यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर से। यू है यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 2 इंटू टी यू इज द 2 यू इज 2 टाइम इज 5 प्लस हाफ इंटू 2/5 तो 5 स्क्वायर। लव से भी एक बार पूछ लेते हैं उसने किस मेथड से सॉल्व किया है। इसको सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारे पास आंसर आएगा, सिंपल है। फिफ्टीन इंटू टू इज इक्वल टू 30 जूल। दिस इज योर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लव है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था? यस सर। कैसे सॉल्व किया था? इस तरीके से जैसे मैंने सॉल्व किया है? एक सेकंड सर, खोल लो कॉपी। हाँ हाँ बोलो बोलो। के बाद में तुम लोगों को एक चीज बताने वाला हूँ। इम्पल्स यस सर, मैंने भी ऐसे निकाला। ऐसे निकालना है। हम्म। अच्छा देखो, इसी क्वेश्चन को ना, इसी क्वेश्चन को तुम एक और तरीके से भी कर सकते हो, सेकंड मेथड बताता हूँ। और थोड़ा सा उससे पहले मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा तुमको एक चीज के बारे में। एक चीज होती है इम्पल्स। अब मैं इम्पल्स बता रहा हूँ तो मोमेंटम कंजर्वेशन बता वगैरह भी बता दूंगा, है ना। इम्पल्स एंड मोमेंटम कंजर्वेशन। देखो इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है जर्क। मतलब तुमने जैसे सपोज हल्का सा पुश दिया फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, हल्का सा पुश बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, उसको हम इम्पल्स कहते हैं। जर्क की तरह मार लो, मतलब तुमने जैसे फुटबॉल है ना, तुम्हारे पास फुटबॉल है, थोड़ी सी देर के लिए तुमने लास्ट से मारा, बस वो जो थोड़ी देर को जो कांटेक्ट किया तुम्हारे पैर ने, तो वो उसने फोर्स लगाया फुटबॉल के ऊपर, और जिस टाइम के लिए वो टच में था तुम्हारा पैर अपने बॉल से, उस बॉल से, तो दैट फोर्स इनटू दैट टाइम is known as the impulse. So impulse is defined as, impulse is nothing but jerk, and this is force into the force acting for a very short duration of time, force into delta t. अब ये डिफाइंड किस तरह से? देखो ये इस तरह से डिफाइंड है, ये लोग बोलते हैं कि एफ इंटू डेल्टा टी इज एक्चुअली इक्वल टू एम पी माइनस एम यू। ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन से आता है। कि कैसे आता है? देखो क्योंकि हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होता है हमारा डी वी बाई डी टी, है ना। इसको तुम लिख सकते हो एम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो फोर्स क्या हो गया? फोर्स इज इक्वल टू एम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो फोर्स इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी। इससे ये इक्वेशन आ जाती है। मतलब अगर तुमने कोई भी ऑब्जेक्ट ले रखा है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है और उसकी फाइनल वेलोसिटी वी है, ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, मतलब यहाँ से यहाँ तक जब चेंज हो उसके पीरियड ऑफ टाइम पे फोर्स लग रही थी, और ये टाइम पीरियड डेल्टा टी है, बहुत छोटा टाइम है, छोटे टाइम में ही ले रहे हैं, तो कंटिन्यूसली लग रही है ये फोर्स। तो इसी इसमें हम ये लगा सकते हैं, दिस इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू। इसलिए आती है ये डेफिनेशन कि जो इम्पल्स होता है ना एफ डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू विच इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। क्लियर है? इसी सी चीज है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब इम्पल्स समझ गए हो तुम लोग। अब बात ये आती है कि ये देखो ये मोमेंटम है। अब मोमेंटम, जब मैंने मोमेंटम को डिस्कस कर लिया है तुम लोगों से,
तो मुझे ये भी बताना चाहिए कि यहाँ पर ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होती है, मतलब मोमेंटम सेम कैसे रहता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे कोलिजन के केसेस में, बहुत जब वो होती है, जो क्या नाम है, हमारी बुलेट जब किसी बॉडी के अंदर जा रही होती है, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, एडवांस के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, दिखाऊंगा भी मैं तुम लोग। तो वैसे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उन सब में इसकी जरूरत पड़ती है मोमेंटम की, क्योंकि मोमेंटम combined with conservation of momentum impulse या conservation of momentum combined with work power energy gives you a very good question. Combined gives you a very good question. अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूजुअली कोलिजन्स के केसेस में डिस्कस किया जाता है यूजुअली, पर ये तुम किसी भी केस में ले सकते हो। मैं बस दो बॉडी का केस ले रहा हूँ क्योंकि जिससे कि अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन किया जाए। पर मैं कोलिजन की जो चीजें हैं ना, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, ये सब वगैरह वगैरह, ये थोड़ा बाद में ही बताऊंगा तुम्हें, तो वर्क एनर्जी के क्वेश्चन होने के बाद। तो क्योंकि उसमें कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और वो सब भी इन्वॉल्व हो जाता है, एक ही इक्वेशन इन्वॉल्व होती है उसमें, तो वो सब थोड़ा सा उसके रिजल्ट्स वगैरह डिराइव करने पड़ेंगे, ऑफ ट्रैक हो जाएंगे अपन लोग, तो इसीलिए मैं अभी नहीं बता रहा। थोड़ा सा क्वेश्चंस वगैरह कर लो, थोड़े कंफर्टेबल हो जाओ, फिर उसके बाद करेंगे, फिर उसके बाद कर लेंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। क्योंकि सिचुएशन क्या है, सिचुएशन है कि हमारे पास ये मास m1 था, ये मास m2 था। इस मास m1 की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो v1 सॉरी u1 थी, इसकी u2 थी। कोलिजन, यहाँ पर कोलिजन हुआ m1 और m2 के बीच में, फिर ये v1 वेलोसिटी से जाने लगा और ये v2 वेलोसिटी से जाने लगा। अभी यहाँ पर यूजुअली तुम लोग पता होगा, अगर तुम लोगों ने क्लास 11 में थोड़ा सा पढ़ा है, चाहे सीबीएसई में ले लो, ये लोग मतलब डायरेक्ट उसमें बोलते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर दो। क्यों होता है, पर होता क्यों है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? जैसे ही कोलिजन के जो भी केसेस तुम देखो, कोलिजन है या फिर ब्लास्टिंग हो रही है या फिर एक पार्टिकल जो है वो ब्रेक ऑफ हो रहा है दो पार्टिकल्स में, जितने भी ऐसे केसेस तुम प्रॉब्लम्स में देखोगे ना, उसमें डायरेक्ट आंख बंद करके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हो। तो रीजन क्या है, यहाँ पर ना, यहाँ पर ये जो फोर्स है, नेट फोर्स 0 लगती है सिस्टम पे। क्यों? देखो, ये पूरा नीचे वाला सिस्टम स्मूथ है, जिस जमीन पे चल रहा है। अगर स्मूथ भी नहीं होता तो जमीन पे चल रहा है ये। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो, मोमेंटम तुम्हें किसी एक डायरेक्शन में कंजर्व करना होता है, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो तुम्हें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन लेना पड़ेगा। अभी यहाँ पर क्या है कि अगर मैं इस डायरेक्शन को लेता हूँ, एक्स डायरेक्शन को, तो इस एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम क्यों कंजर्व रहता है? क्योंकि देखो, यहाँ पर इस दोनों मासेस का मैं सिस्टम ले रहा हूँ। अब इस मास का जब फोर्स सिर्फ एक ही पॉइंट पे लगेगी, जब ये दोनों कोलाइड कर रहे हैं। तुम लोग बोलोगे कि सर नीचे भी तो लग सकती है जब वो जमीन पे चल रहे हैं, तो पर नीचे इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, क्योंकि ये कंसिस्टेंटली m1 जो है वो कंसिस्टेंटली अर्थ से कांटेक्ट में है, तो ये दोनों की दोनों फोर्सेस जो है ना, आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है। पहली बात ये, mg लग रही है तो वो नीचे की तरफ लग रही है। अब क्या है, उसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि फोर्स जो लग रही है वो एक ही टाइम पे लग रही है, वो है जब m2 m1 से टच में आता है, कोलिजन करता है, m2 m1 पर एक फोर्स लगाता है, एफ सपोज। और क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है, कांटेक्ट फोर्स, तो m1 भी m2 पर सेम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ही लगाएगा। तो इस सिचुएशन में पूरे सिस्टम, अगर m1 m2 दोनों को ले रहे हैं अपन, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी सिर्फ इसी। और फिर उसके बाद फिर से अलग अलग जाने लगेंगे, उसके बाद तो फोर्स का कोई सवाल ही नहीं है। अब इस पूरे सिचुएशन में अपन ने पूरे मूवमेंट में क्या देखा, यहाँ पर फोर्सेस सिर्फ एक ही पॉइंट पे लग रही थी, जब वो दोनों आपस में
कोलाइड कर रहे थे। पर अगर हम सिस्टम एज ए होल लेते हैं, M1 M2 दोनों सिस्टम एज ए होल, तो दोनों पर जो नेट फोर्सेस है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, नेट फोर्स 0 हो रही है। इसीलिए एफ नेट जब 0 हो गया तो इसीलिए हम यहाँ पर इम्पल्स 0 है, एफ डेल्टा टी 0 है, 0 है क्योंकि ये, इसीलिए हम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल हो गया ये, तो पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि m1 v1 प्लस m2 v2 जो कि कोलिजन के बाद का टोटल मोमेंटम था, इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 आप कर सकते हो, बिकॉज ये कोलिजन से पहले का मोमेंटम था। इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पर याद रखना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हुआ क्यों है? क्योंकि नेट फोर्स 0 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट फोर्स जिस भी डायरेक्शन में आप मोमेंटम कंजर्व कर रहे हो ना, उस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होनी बहुत जरूरी है। अगर तुम सिर्फ इसमें से एक बॉडी का एनालिसिस लेते, सिर्फ एक बॉडी का मतलब देखो, सिर्फ अगर तुम M1 लेते तो अकेले M1 का मोमेंटम कंजर्व नहीं होता। ये गलती मत करना कभी भी। M1 लेते सिर्फ M1, तो उसका मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा सिस्टम में, क्योंकि M1 के एनालिसिस में अगर तुम देखोगे तो M1 में एक फोर्स लग गई सिर्फ Sir, अकेले so if M1। friction is there, then the conservation of momentum is not followed, right? No, cannot, because this force is acting, that force will create an impulse, so you cannot. Okay, in this, when two bodies are colliding, for both as a system you can conserve the momentum, but individually you cannot conserve, because for individually there is one force acting. So the basic condition is net force should be equal to 0. अब देखो, ये वाला जो क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया था, इसी क्वेश्चन को अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन से सॉल्व करता, करते हैं मेथड 2। Body of mass 5 kg is moving with the momentum of this. Now force acting on the body in the direction of 5 सेकेंड। मतलब फोर्स एक्ट कर रही है 5 सेकेंड के लिए, इम्पल्स की तरह ट्रीट करूंगा मैं इसको 2, मतलब एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। फोर्स है 2 न्यूटन, एक्ट हो रही है 5 सेकेंड के लिए, मास कितनी है इसकी 5 kg, वेलोसिटी मुझे पता करनी है, v क्या है, u मुझे पता ही है, u मैंने इसमें निकाला ही है 2 मीटर पर सेकेंड, तो v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी देख लो, इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी इससे भी इजी है, पता है। मैं देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता ना, मैं कैसे सॉल्व करता? Sir, so now we can do half mv square minus half mu No, square. but I am doing more easier way. If you would ask me, sir, how would you solve it? I would solve like this. See, force 5, no, force 2 Newton acting for 5 seconds, 2 into 5. Initial momentum is given to me 10. So final momentum I have got. So PF is equal to 20. Now kinetic energy, if you know, kinetic energy can also be written as P square by 2m, because it's m square v square, half m v square. So the difference in kinetic energy they are asking is equal to PF, that I am writing like this, PF square by 2m minus PI square by 2m. So PF is actually 20 square by 2 into 5 minus initial momentum was 10 square by 2 into 5.
So it will be 400 minus 100, 300 by 10, 30. Actually, I would not write this formula that I have shown. Na, I would not write it. I would think in my mind only. So this is how you can solve this question by another way, by using impulse momentum. Actually, this question was meant for this impulse momentum only. That's why they have given value of momentum. But it's another thing you can solve by using work energy theorem also. So here you will learn one more formula you can use for kinetic energy is equal to p square by 2m, where p is the momentum. Okay, now let me give you one more. डाउट तो नहीं है किसी को? अशिका डाउट तो नहीं है ना, सब क्लियर है? सर अब देखो, नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन.
then minus 245 joules. Correct. Minus 245, no, you are saying? Yes, sir. Correct. बाकी लोग बताओ भाई. So Shishita, you are solving previous year questions, na? JEE main previous Yes. year question I told you. For every chapter, keep on completing them. Okay, sir. So over here, we will have to take work done by friction as well as work done by the gravity too. Here, in this case, work done by gravity you have to take, but He is given, so if we take work done by gravity and friction, then no, friction not needed because friction is not there, no? Acha, whose inner walls are rough? You have to take the work done by friction also. Like the tube on, Actually, it's not a difficult question. It's easy one only because initial velocity is 0, final velocity is also 0. Both are 0. Only net work done is equal to 0, and the net work is done by mg and friction both only. So the work done by mg plus work done by friction is equal to total 0. So the work done by friction will be actually minus of work done by mg. Achha, but initial velocity is given, na? Sorry. Final velocity is 0, but initial velocity is there. So initial kinetic energy will be there. क्या हुआ अच्छी? You're getting answer? No, sir. अरे वाह, लव तुम्हारा आंसर आया. सर मैं बताऊं मैंने कैसे करा. बोलो. सर पहले तो उसका इनिशियली तो जीरो होगा, सॉरी फाइनली जीरो होगा, पर इनिशियली 22 है. हाँ सही है. वेलोसिटी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर. सर आ गया मैंने. 245 है सर. हाँ टू माइनस टू फोर्टी फोर्टी फाइव है. माइनस 245. सर मेरा 239 आ रहा था, तो हाँ. मैं माइनस कर दिया था 3 को. अच्छा. सर मैं वही सोच रहा था, तो आ गया. आ गया ना. अच्छा. अच्छा, स्टिल नॉट गेटिंग. शुड आई सॉल्व? No, sir. No, sir. He, अच्छा आशिका, yes, sir. तुम्हारा आया? तुम्हारा भी नहीं आ रहा सेम आंसर क्या? Okay, sir. आ गया. अच्छा देखो मैं एक बार करके दिखाता हूँ फिर भी. What is happening? Closed circular tube of average radius 15 centimeter radius is given to you. Inner walls are rough, so friction is always there. Block of mass 1 kg, 1 kg is there. It fits inside. Initial velocity इन्होंने दिया हुआ है 22 मीटर पर सेकंड है. ये बोल रहे हैं आफ्टर कंप्लीटिंग 5 ऑसिलेशंस. पहला ऑसिलेशन ये, फिर ऐसे 5 ऑसिलेशन करने के बाद ये नीचे जाके रुक जाता है यहाँ पे. वर्क डन बाय द ट्यूब ऑन द ब्लॉक. देखो कितने भी ऑसिलेशन कर ले, mg तो कंजर्वेटिव फोर्स है,
work done only depends on the initial and final position. Sir, so we have to do only half mv square. No. Then we will get the answer. Or No. See, work done by friction plus work done by mg is equal to change in kinetic energy, which is work energy theorem, which is half mv square. This is 0. So it will be half m into 0 square minus half into m into 22 square. This is your work energy theorem doing. Now, work done by friction, that is which is required, work done by mg will be what? mgh. mg into h, force into displacement. अब फोर्स भी नीचे की तरफ है क्योंकि ऊपर अल्टीमेटली जब ऊपर से नीचे तक गिरा है तो फोर्स इसकी mg नीचे लग रही है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की डायरेक्शन में होगा तो वर्क पॉजिटिव होगा। तो ये g इंटू 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर्स में कन्वर्ट किया है, 3 हो जाएगा बेसिकली। W बाई फ्रिक्शन, राइट वाला भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। W बाई फ्रिक्शन प्लस 3 इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ इंटू 1 इंटू 22 इंटू 22। ये हो जाएगा आपका फ्रिक्शन इज इक्वल टू योर, इसको हटा दो, 11 इंटू 22 यानी कि 22 242 माइनस 242 माइनस 3 हो गया ये, माइनस 245 हो गया, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ गया। अच्छी check what part you was doing wrong. so I was not considering work done due to mg. You have to be very carefully judge the work done. If they said it will rotate and come last, it will stop at last at the original position, then work done by mg will be 0. अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन करो। Sir, is the answer 200? Answer 200 bit. No. They are saying it is something approximately 67.
66.67 you'll get 67. Tell me what have you Yes, sir. done? Sir, I'm getting the answer is 200 by 3 now. Yes. 200 by 3, na? Okay. No, correct. 200 by 3 is 66. What about others? Sir, but if it's an answer in decimal, then how it is in integer type? No, you have to You have to give approximate. 67. 67. 67 you have to write. Actually, you have to learn that approximation method, approximation they give na, in class 11. Basic topic. Yes, sir. So There. if 3.5 comes, then I'll give 4. Hmm. And if 2.5 comes, then I'll give 2 or 3. I think 2. So just study the rules once. Class NCRT rules only. Follow the NCRT rules completely. Using those, you can do. Otherwise, you will get the answer correct, but because of silly mistake, they will mark. So what about others? Everyone is able to solve it. Not a problem. No, sir. नहीं है अच्छा. Vijita, Yes, sir. over, done. Yes, sir. Shika, हुआ. अच्छा हुआ ये वाला करना तो नहीं है. पता नहीं आया लगता है. देखो कुछ सिचुएशन ये है. फास्ट जल्दी जल्दी सिचुएशन बता देता हूँ. ब्लॉक इज पुल्ड a distance x 10 centimeter from its equilibrium position. ये equilibrium position है जहाँ पे x is equal to 0 होता है क्योंकि यही इसकी equilibrium है. इसको 10 सेंटीमीटर से आपने एक्सपेंड कर दिया. फ्रिक्शनलेस सरफेस है. द एनर्जी ऑफ द, अब देखो यहाँ पर जब इसको यहाँ पर पुट कर दिया ना, इधर ले आए आप, तो एक्सपेंड करके 10 सेंटीमीटर पे, यहाँ पर अभी ये रुका हुआ है, वेलोसिटी 0 है, रेस्ट से छोड़ दिया. अब ये बोल रहा है कि जब 5 सेंटीमीटर पर एक्सपेंडेड है ये इधर, तब उसके केस में स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है. अब इस वाले केस में टोटल एनर्जी इन्होंने दिया हुआ है ई टोटल, ये 0.25 जूल दिया हुआ है. अब यहाँ पर देखा जाए तो देखो यहाँ पर दो चीजें होंगी क्या. एक तो हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी होगी बिकॉज इट इज एक्सपेंडेड. अगर मैंने 5 सेंटीमीटर को एक्स बोला है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, जो इसकी वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ. ये टोटल एनर्जी 0.25 दिया हुआ है, पर हमें ये टोटल वैल्यू जो है ये 0.25 दिया हुआ है. हम यहाँ पर इस पोजीशन ए और बी वाली जो पोजीशन है ये वाली बीच में जब आएगा, तो इन दोनों पोजीशन के बीच में मुझे इसको मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करूंगा. व्हाई? बिकॉज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है, क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं. स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में यूज कर सकता हूँ. तो हाफ एम यू स्क्वायर विच इज 0 स्क्वायर प्लस इस पोजीशन में, ए पोजीशन में इसके पास वेलोसिटी नहीं है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी है, हाफ इंटू के इंटू इसका 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर को 0.1 लिख देता हूँ मीटर्स में. 0.1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. वी हमें पता नहीं है, भले एक्स हमें पता है ये 5 सेंटीमीटर, 0.05 लिख सकता हूँ इसको मैं, लेकिन इन्होंने ये जो टोटल एनर्जी है ये 0.25 दी हुई है, तो हमें काम आसान हो जाता है.
half k into 0.01 is equal to 0.25, तो k is equal to 50 है। मेरा 50 क्यों आ रहा है भाई? तुम लोगों का 67 कैसे आ रहा है? Sir, I think we have to consider only the spring force and the change in spring energy. वेट वेट लेट मी थिंक। 67 आंसर इनका वैसे कायदे में, actually the correct solution is this, you should get the answer is 50. Right, let me think what way other way they will be getting. अच्छा, okay, if अच्छा इन्होंने एक्सपेंशन दिया हुआ है यहाँ पे, इन्होंने मुझे लगता है हाफ एम बी स्क्वायर को इन्होंने दिया है 0.25। अच्छा लेके देखते हैं, इसको अगर 0.25 लेंगे तो उस केस में हमारी इक्वेशन ये बनेगी, हाफ इंटू के इंटू 0.01 इज इक्वल टू हाफ इंटू के इंटू 0.05 होल स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू 0.25 रखी है, तो 0.25 हो गया, यानी कि हाफ इंटू के इंटू 0.01 माइनस 0.05 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25। अच्छा 100 25 100 k by 2 into 1 minus 25 0.25 equal to 25, you get 0.75 k is equal to 50. Into 100 by 75, 200 by 3. Now I'm getting 57. But actually, according to the statement they have given, answer should be 50. इनको है ना बहुत क्लियरली स्पेसिफाई करना चाहिए था। तो तुम लोगों ने हाफ एम वी स्क्वायर लिया है, सब लोगों ने हाफ एम वी स्क्वायर लिया है, लेकिन स्टेटमेंट अगर ठीक से पढ़ती ना, एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, इनको स्पेसिफाई हो सकता है ये लिखा गलत गया हो, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो या कुछ हो, पता नहीं, हो सकता है उसमें गड़बड़ी हो, लेकिन इन्होंने काइनेटिक एनर्जी देना होता है ना, तो ये क्लियरली लिखते थे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट दिस एक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इज 0.25। यहाँ पर ना काइनेटिक और लिखना पड़ेगा इसको, काइनेटिक एनर्जी, नहीं तो इसका आंसर 50 आ रहा था। हाँ, अब ये वाला करो।
Sir, is the answer 40 meters? There is, I think, 40 minutes. Minimum maximum distance. Just calculate. No, D should be 4. D should be 2 meters, I think. Yes, sir, I'm getting 2. I accidentally took V square as V. So, mistake. So the answer should be 2. आ रहा है आंसर? लव्य आ रहा है? लव्य, सृजिता, अशिका? देखो सिचुएशन ये है, सिचुएशन बहुत इजी है। ब्लॉक को कंप्रेस किया गया है 2 मीटर से, ब्लॉक यहाँ था, ये छोड़ दिया, यहाँ तक आया, यहाँ आने के बाद ये चढ़ गया। अब जब ये यहाँ आएगा, यहाँ आने पर इसकी कोई वेलोसिटी होगी। देखो एक तो तरीका ये है, फिर यहाँ तक चढ़ेगा, कहाँ तक हमें नहीं पता, ये डिस्टेंस जहाँ तक चढ़ेगा ये पूछा गया है। प्रॉब्लम क्या है, देखो या तो तुम ऐसा करो कि इस सिचुएशन से ए, ये बी है, ये सी है, ए से बी के बीच में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर दो, तो क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। दूसरा यहाँ पर भी जब बी से लेके सी तक, क्यों मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे कोई और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं, फ्रिक्शन ही नहीं है। बी से सी के बीच में फिर तुम वही करोगे, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, कोई और फ्रिक्शन कुछ है नहीं, फ्रिक्शन वगैरह कुछ है नहीं, तो उसी केस में तुम ये करोगे हाफ। क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा कर सकता था, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी, ये हाइट एच, तो इसको तो एच को क्या लिख सकते हो, एच बाई डी इज इक्वल टू साइन 30, तो इसीलिए एच इज इक्वल टू डी बाई 2, तो डी इज इक्वल टू 2h एम जी डी बाई 2। अब मैंने क्या किया, देखो ये यूजली लोग करते हैं, पर क्योंकि जब से छोड़ा गया है तब से वहां तक जो ऊपर गया है बीच में, मैं क्या करूंगा, मैं ए और सी डायरेक्ट दोनों के बीच की वो लगा दूंगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि बीच में कहीं पे कुछ लॉस ही नहीं हो रहा ना, कोई फिक्स वो ही नहीं है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो मैं 1 और 2 को डायरेक्ट अप्लाई कर देता ए से लेके डायरेक्ट सी में। तो मैंने जो मैं कैलकुलेशन की थी ऊपर वो वही की थी, हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी डी बाई 2, तो हाफ इंटू के मुझे दिया हुआ है 10 है, एक्स मुझे दिया हुआ है कितना है 2 मीटर, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू मास मुझे दिया हुआ है 2 kg, जी इज 10, टी मुझे पता नहीं है, निकालना है, ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, टी की वैल्यू 2 आ गई। ऐसे प्योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसीलिए मैं बोलता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तुम्हें पता होना चाहिए, तुम अप्लाई क्यों कर रहे हो, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं। ये क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग तब हो जाता जब ये लिए बोलते कि व्हाट इज, मतलब इस
इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता, कैसे पता है? कि यही सिचुएशन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तब होता है ये कि ये स्प्रिंग है, सेम सिचुएशन से इसको छोड़ा गया है 2 मीटर कंप्रेस करके, इस वाले सरफेस से सरफेस बी टू लेके सी तक यहाँ पर फ्रिक्शन है, और मैंने बोला है कि it stopped after when it moves from B to C. After 4 meter, it stops. The block stops after 4 meter. Then find out the value of the friction force. निकाल सकते हो? समझ में आ गया ना क्वेश्चन? सॉल्व यस करके सर। निकालो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या है, फ्रिक्शन फोर्स वैल्यू। Same, this angle is again 30 degree. Sir, answer should be 5 newtons friction 5 न्यूटन force. सबका वही आ रहा है, so it will be half kx square, which is half into 2 square. Minus 0 minus this equal to work done by friction. Work done by mg will be negative, so mg into t. अच्छा, 4 by 2, 2. So m in 2 into 10 into 240 minus 20 plus 40 friction force into 4. You said 5 Newton, na? Yes, sir. Correct. Very good. This was a better question, but this question that they gave was quite easy. See, take this question. सभी का आ गया ना ये वाला आंसर 5 न्यूटन। देखो भाई, जो मैंने क्वेश्चन पुटअप किया, पता नहीं किसको स्टेटमेंट समझ में आया नहीं आया, आ गया हो तो एक बार कर लेना है। हाँ सर। आ गया ना? ठीक है, ये होमवर्क, इसको होमवर्क की तरह करना, होमवर्क की तरह घर पे, है ना? इन द नेक्स्ट क्लास I'll solve some tougher questions and we'll move on to the collision part, because we have started conservation of momentum. So I'll give you the concept of collision, this one, what we say, the coefficient of restitution and all, and then we will solve mixed up question of work, power, energy with collision and conservation of momentum, and then we'll start tougher questions. So let's end it then.